हेलो स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करते हैं बेटे 7.4 एक्सरसाइज अपनी एनसीईआरटी की बुक से। और उस फोर्थ एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, तो हम उस स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे और फिर सारे क्वेश्चंस को जो भी हमें फंक्शन दिया होगा जिसका इंटीग्रेशन करना है उसे हमने अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फॉर्मूले अप्लाई कर देना है। उससे पहले लेट्स वी डिस्कस all these results which are to be used in this exercise 7.4 in NCERT, exercise 7.4 NCERT book में से। तो first of all, let me discuss the results which are to be used in this exercise. So there are 6 results which are to be used in this exercise, and one seventh is also there, but both come use होता है। So let's start with very first result. So first standard result is this one over x square minus a square into dx. All these results are written here, but we need to discuss all one by one. So 1 over x square minus a square. This is our first result, and second is 1 over a square minus x square. So actually these both are same. अगर हम ऊपर फर्स्ट में से माइनस को कॉमन ले लें तो देन इट बिकम a square minus x square. So that's why these two are same. And third is 1 over a square plus x square. This is our third. So these three consider as one type of result because they are simple. 1 over quadratic equation, denominator में quadratic equation है, while other three are what? They are also quadratic equation under square root. So first we will discuss these three. So in our third result, if we put a is equal to 1, if suppose a is equal to 1, then this third result becomes 1 over 1 plus x square into dx, like this. And you know integration of this is tangent inverse x plus c. And this result is also identical to this one, but just replacement is this ki 1 is replaced with a. So 1 here, so we can write this as 1 square. So instead of 1, now it is a here. So there is just slight change in integral, that is 1 upon a into tangent inverse x upon a plus c. Exactly same as it is. यहाँ पे सिंपल टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a था, जबकि यहाँ फिर आपका टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a और 1 अपॉन a बाहर आ जाता है। और ये दोनों बेटा बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों का आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। दिस इज 1 अपॉन 2a इंटू लॉग ऑफ x माइनस ए डिवाइड बाई x प्लस ए प्लस सी, एंड दिस इज 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ यहाँ पे x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट्स व्हाई दिस इज x माइनस ए डिवाइड बाई x प्लस सी। यहाँ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट्स व्हाई इट इज a प्लस x डिवाइड बाई a माइनस x प्लस सी। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यही फॉर्म आ जाती है। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर तो यही फॉर्म आ जाती है। तो इट मीन्स इसका इंटीग्रेशन भी यही होता है, एक्सेप्ट यहाँ -1 आ जाएगा। -1 को जब लोग की पावर ले जाएंगे तो ये उलट जाता है। दिस इज अवर फर्स्ट 3 रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट 3 रिजल्ट्स आर 4, 5 एंड 6। दे आर विद स्क्वायर रूट। तो 1 ओवर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इज आवर फर्स्ट के ऊपर हमने रूट लगा दिया। देन थर्ड के ऊपर अंडर रूट लगा दो पहले, 1 ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dx, एंड देन टेकिंग सेकेंड, दैट इज 1 ओवर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx। तो अब इस थर्ड, अगर हम 6th रिजल्ट को फिर से देखें और सपोज a इज इक्वल टू 1, तो देन दिस इंटीग्रल बिकम अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx, एंड इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन इज sin inverse x, that is sin inverse x. So therefore what will be the integration of this type of function? Here 1 is replaced with a, so it is just slight change, that is sin inverse x upon a plus c. This one is sin inverse x upon a plus c, rest is same. ये मैं इस करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग मैचिंग कर सको कि दिस इज 1 ओवर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, so this is of the type of derivative of sin inverse, so that's why integration of this function is sin inverse x upon a, and these two are again same, log of modulus plus c. This is also log of modulus plus c, log of x plus, that is modulus के अंदर x plus, और बेटा प्लस के बाद जो भी यहाँ डिनोमिनेटर में अंडर रूट्स में क्वांटिटी रखी है वो एज इट इज पुट कर दो, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस
x square. So this is our next sixth result. And one seventh result is also there, that is 1 over mod of x. कहीं बुक में यहाँ mod नहीं लिखा होता, सिंपल x लिखा होता है. तो x square minus a square, 1 of mod x into under root x square minus a square, that is equal to 1 over a into secant inverse x upon a plus c. So these are the results which we will use in our exercise 7.4. So before starting that exercise, let's take some examples related to that. And all questions are same. सारे के सारे question एक ही जैसे हैं, बस हमें question का integration नहीं करना. We just convert our function in any one of the given standard forms. किसी एक standard form में हम convert कर देंगे. So let's suppose we have example 1. Suppose we have a question 1 over 10 plus 4x square into dx. Suppose we are having this question and integrate it. तो ध्यान से देखिए 1 upon 10 plus 4x square. So just try to convert this function in any one of these 7 standard forms. तो बीच में प्लस का साइन है, तो आप चेक करो जरा, इन ऑल दीज 7 स्टैंडर्ड फॉर्म्स, 6 स्टैंडर्ड फॉर्म्स आर लाइक दैट. सभी में न्यूमरेटर में 1 है, नंबर 1. सभी के न्यूमरेटर में 1 है, नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2, डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, एक कांस्टेंट का स्केयर है, दूसरा x का स्केयर है. डिनोमिनेटर में हर एक के डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 टर्म है, एक कांस्टेंट नंबर a का स्केयर है, तो दूसरा x का स्केयर है. और x का स्केयर either +1 or -1, means coefficient of x square is either +1 or -1, none else. और जो constant term है बेटा, that is also written in terms of square of a constant number, a square. तो हमें हर क्वेश्चन को इन्हीं फॉर्म में बदलना है. तो फर्स्ट पॉइंट न्यूमरेटर में 1 है, ओके, नथिंग टू डू. सेकेंड पॉइंट, हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है, तो यहाँ प्लस है तो इसलिए +1 हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो -1 हो जाएगा. So now we need to convert this coefficient of x square as 1. So what to do for this? We can take this 4 common. तो 4 कॉमन ले लें. तो पहला काम 4 को कॉमन ले लें. तो 1 upon 10 upon 4 plus x square into dx. Now this is 1 upon 4 into 1 upon, sorry, this is 5 upon 2 plus x square into dx. Now check it कि ये किसके साथ कंपेयर होगा. तो a square plus x square, this is our third result, 1 over a square plus x square. तो x का तो स्केयर है, जो कांस्टेंट वैल्यू है that must be written in terms of a perfect square number. So that's why we should write this number also in as a square of a constant number. So we can write here under root 5 upon under root 2, under root 5 upon under root 2 square plus x का square into dx. Now compare it with this third result. This third result is exactly like this. So here a is equal to under root 5 upon under root 2 and x is this. So now apply this result. We have nothing to do here. We just convert our function in any one of these given standard form and apply that result. So 1 upon a square plus x square, that is 1 upon a tan inverse x upon a, and a here under root 5 upon under root 2. So that's why 1 by 4 as it is, into 1 upon a, that is under root 5 divided by under root 2, into tangent inverse x upon a. So this one is x upon a under root 5 divided by under root 2 plus c. That's your answer. खत्म का. इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो ये आपकी मर्जी है. under root 2 divided by 4 under root 5 into tangent inverse under root 2x divided by under root 5 प्लस सी. दैट्स योर आंसर. यू आप ऐसे लिख सकते हैं. अंडर रूट 2 और 4 कैंसिल होते हैं, वो आपकी मर्जी है. यू कैन कन्वर्ट इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, जितना चाहें उतना कर सकते हैं. ओके, नाउ बट कुछ चेंजेस और आ सकते हैं इसमें, जो बहुत छोटे छोटे चेंजेस होंगे. सपोज करो हम इस क्वेश्चन में यहाँ प्लस की बजाय माइनस कर दें, देन व्हाट, क्या फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं आएगा. हमें अभी भी कुछ नहीं करना. वी आर जस्ट गो, न्यूमरेटर का 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, -1 बनाएंगे तो फिर से हम 4 को कॉमन लेंगे. तो दिस इज 10 upon 4 माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ 1 upon 4, 10 upon 4, 5 upon 2 माइनस एक्स स्क्वायर. तो 5 upon 2 को बेटा फिर से हम अंडर रूट 5 upon अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख लेंगे. नाउ मैच दिस फंक्शन विद एनी वन ऑफ द स्टैंडर्ड रिजल्ट. दिस इज 1 over a square minus x square. Now it match with
our second result, not with third. This is 1 over a square minus x square. We just apply this result, nothing else. तीसरी एक्सरसाइज के बाद हमारा इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है. We just go with the standard results, whatever given to us. So then again 1 upon 4 as it is, and this result is 1 upon 2a. So 1 upon 2a, that is under root 5 upon under root 2 into log of a plus x, that is under root 5 upon under root 2 plus x divided by under root 5 plus under root 2 minus x and plus c. That's all. This is your answer. खत्म. बस स्टैंडर्ड फॉर्म अलग बनी थी इसलिए फॉर्मूला आंसर भी अलग आ जाएगा. इसको आप सिंप्लीफाई कर लें 2 एलसीएम अंडर रूट 2 एलसीएम लेके और सो. ओके, नाउ let's again we have to some other function of the same question. Suppose this question is under root 10 minus x square. Now this function will match with any one of the 4, 5 and 6 standard results. तो अंडर रूट में आ गया बेटा, तो व्हाट टू डू. अगेन न्यूमरेटर में आपका 1 है तो हमें चाहिए था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें 1 बनाना है. तो व्हाट कैन वी डू हियर दिस, हमें इसको 4 को कॉमन लेना पड़ेगा. तो 4 को कॉमन लेना है, अंडर रूट है तो इसलिए बेटर है कि जो 4 कॉमन ले रहे हो आप अंदर ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन लो. तो इट इज 10 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर लाइक दिस. स्क्वायर रूट हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना था तो 4 को हमने कॉमन ले लिया अंडर रूट के अंदर ही. और अब जब इस अंडर रूट 4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो इट विल बी 1/2 and this is under root 10/4 that can be written as 5 upon 2 minus x square into dx minus x square into dx. Now this is 1/2 1 over 5 upon 2, that is under root 5 upon under root 2 का square minus x square into dx. Now try to match this result with any one of the standard. So this is matched with the sixth result, 1 over under root a square minus x square, and this is nothing but sine inverse x upon a, where a is again under root 5 upon under root 2. Therefore 1/2 into sine inverse x upon a, that is under root 5 upon under root 2 प्लस c. और आप इसको सोल्व कर देंगे, साइन इनवर्स अंडर रूट 2x डिवाइड बाय अंडर रूट 5 प्लस c, एंड दैट्स योर आंसर. ये आपका आंसर आ जाएगा. ओके, विदाउट कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं हो सकती. हम एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, अलग अलग टाइप में कन्वर्ट कर दो. अगर हम इसी क्वेश्चन में यहाँ पे दोबारा से 10 प्लस एक्स स्क्वायर कर 4x स्क्वायर कर दें तो इधर प्लस हो जाएगा. एंड नाउ result will be changed because now this time this will match with our fifth result, 1 over under root a square plus x square. So result will be different. Rest जो हमने काम किया that will be same. तो log of x plus whatever this मैंने बोला था whatever is in the denominator you have to put this here. तो under root 5 upon under root 2 का square plus x का square and plus c. That's all. खत्म क्वेश्चन. इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं जितना हो करते हैं. सिर्फ ये है भाई. तो कई क्वेश्चंस में न्यूमरेटर में 1 नहीं होगा. जहां पे न्यूमरेटर में 1 नहीं होगा, हमारे रिजल्ट जितने भी हैं 6-7 सब में न्यूमरेटर में 1 है. अगर किसी क्वेश्चन में न्यूमरेटर में 1 नहीं है तो इसका मतलब वहां हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे. सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा. उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करके हमें न्यूमरेटर को 1 बनाना पड़ेगा. जैसे आपकी एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. तो 7.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर डिवाइड बाई x रेज टू पावर 6 प्लस 1 है. तो 1 है तो बहुत आसान कर दिया है. 1 के अलावा कुछ और भी हो सकता था. सपोज करो हम 1 के अलावा कुछ और ले लेते हैं. मान लो हमने 10 ले लिया. तो नाउ दिस इज 3x स्क्वायर. यहाँ 1 होना चाहिए था बट दिस इज 3x स्क्वायर. और यहाँ भी x की पावर 2 चाहिए हमें. हमारे पास हर जगह x स्क्वायर है बट हियर x की पावर 6. इट मीन्स सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड हियर. तो व्हाट सब्स्टिट्यूशन वी कैन डू हियर, 3x square, so it means it must be in dt में 3x square into dx आना चाहिए. so it means t must be what, x cube. इतना तो आपको अंदाजा होगा ही कि t को x cube पुट करेंगे तब उसका डेरिवेटिव 3x square आएगा. x cube कहाँ से ले सकते हैं? दिस वन इज x की पावर 6, so we can put here x cube square प्लस 10 और ऊपर 3x square into dx. It's like this. हम ऐसा कर सकते हैं. Now say this. तो x क्यूब को t पुट कर दे बेटा तो dt 3x square into dx. तो then this integral again 1 into dt divided by t square plus 10.
10 मैंने लिख दिया, आपकी बुक में 1 ही है, डजंट मैटर। एंड नाउ ट्राई टू मैच दिस रिजल्ट विद एनीवन। विदाउट अंडर रूट है तो पहले 3 से मैच होगा, अगर ये स्क्वायर रूट में होता तो लास्ट के 3 से मैच होता है। तो 1/t² प्लस 10, तो 10 को भी स्क्वायर कर लेंगे हम, तो कैन राइट √10² प्लस t² into t², तो 1/a² प्लस x², दिस इज अवर थर्ड रिजल्ट एंड दिस इज 1/a 1/√10 into tangent inverse t upon √10 plus c. Now put the value of t here, 1/√10 tangent inverse t, this t is x³ upon √10 plus c, that's your answer। तो कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना होगा, तो बी केयरफुल फॉर दैट। सपोज यहाँ पे x की पावर 6 माइनस 10 होता है, तो देयर इज नो चेंज एट ऑल, बस यहाँ पे नाउ वी कैन यूज दिस फॉर्मूला 1/a² minus x², देन इट इज आवर सेकंड रिजल्ट, तो दिस आंसर विल बी देयर। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन कि वो क्वेश्चन कौन सी टाइप में कन्वर्ट होता है। तो सी फर्स्ट 9 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, आप इस एक्सरसाइज के पहले 9 क्वेश्चन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 9 all are simple, question number 1 to 9 all are simple, you can do it। let's we try to solve one or two more question। suppose करो question number 7 is there, तो question number 7 बेटा 1/x minus 1 divided by x raised to power x² minus 1। तो keep in your mind, इसमें जो पीछे हम सेकंड एक्सरसाइज में, थर्ड एक्सरसाइज में कुछ कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी है या सब्स्टिट्यूशन करना है या कोई और कुछ करना है, तो वो हम करते रहेंगे। बस यहाँ पे फर्क यही होगा कि हमारा क्वेश्चन किसी न किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो सी ऊपर x minus 1 है, तो हम इसको सेपरेट कर लें, न्यूमरेटर को अलग अलग। दिस इज x अपॉन √(x² minus 1 minus 1 अपॉन √(x² minus 1 into dx। तो बेटे इसको सेपरेट 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर लो, x डिवाइड बाय √(x² minus 1 into dx, और माइनस कॉमन ले लो √(x² minus 1 into dx। तो आप चेक करेंगे पहले पार्ट में हम इसको x² minus 1 को t पुट कर लें तो ऊपर उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। आप ऐसे मेंशन करोगे पुट t इक्वल टू x² minus 1 इन फर्स्ट पार्ट, देयर आर 2 पार्ट, इन फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट इंटीग्रल, नॉट इन सेकंड। तो dt is equal to 2x into dx, so therefore this 2x into dx, but here it is x into dx only, here it is x into dx only, x into dx ही है। तो हम यहाँ पे बेटर रहेगा जस्ट राइट डाउन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 2, हम इसको 2 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो देन इट इज 1/2, दिस इज 1/√t into dt। ये हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है जहाँ हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, और माइनस ये देखना बेटा, ये तो हमारा नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट है दैट मैच विद अवर फोर्थ रिजल्ट 1/x² minus a²। तो इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं 1/√x² minus a², here a is 1, तो देयरफॉर इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन log of x प्लस √(x² minus 1 plus c। हमने सब्स्टिट्यूशन सिर्फ फर्स्ट पार्ट में किया, सेकंड में जरूरत नहीं थी तो नहीं करेंगे, और इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। दिस इज t raised to power -1/2 into dt and this one is as it is, log of and all these things, so that's your answer। तो आई होप फर्स्ट 9 क्वेश्चन यू कैन डू इट इजीली। अब इसमें कुछ क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म आती है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है, आप लोगों को 10th क्लास की याद कराता हूँ मैं। 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट इज जस्ट लाइक दिस, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लो ax² plus bx plus c इक्वल टू 0। इक्वेशन कहेंगे तो इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, नहीं तो आप सिंपल ax² plus bx plus c लिख सकते हो। तो हमें इसको कंप्लीट स्केयर में कन्वर्ट करना है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती थी वो 3 मेथड से सोल्व करते थे, बाय फैक्टराइजेशन, बाय यूजिंग डी फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाते थे, एंड थर्ड इज बाय कंप्लीटिंग स्केयर। तो कंप्लीटिंग स्केयर क्या है उसको चेक करते हैं। हमें इसको कंप्लीट स्केयर में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि x में कंप्लीट स्केयर लिखना है, जैसे x प्लस a का स्केयर आ जाए, x माइनस 2 का स्केयर आ जाए, x प्लस 2 का स्केयर आ जाए, लाइक दिस। तो फॉर दैट फर्स्ट स्टेप क्या होता था, मैं याद कराने की कोशिश करता हूँ।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाओ अगर वो 1 नहीं है। मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मुझे a नजर आ रहा है, तो a को कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस सी। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, कीप इट इन योर माइंड। मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज प्लस वन। तो अगर -2 हुआ तो -2 को कॉमन ले लेंगे। सेकेंड स्टेप बेटे, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करिए। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स और उसका होल स्क्वायर। ये 1/2 हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज b अपॉन 2a का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज b अपॉन a, तो b अपॉन 2a का, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, और c माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। इट्स लाइक दिस, ऐसे कर दिया। तो नाउ दिस वन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस पार्ट, सी दिस पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर और -2a भी, तो दिस वन इज x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और प्लस बेटा इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे यू विल गेट सम कांस्टेंट नंबर, दैट नंबर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, व्हाटएवर दैट नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव। और अब हमारा क्या होगा, जहां पर भी ये क्वेश्चन है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म और आते हैं, इससे पहले मैं बता देता हूँ कि जहां पे भी x लिखा हुआ हमने एक्स स्क्वायर, अगर उसकी जगह कोई भी लीनियर टर्म आ जाती है जस्ट लाइक ax प्लस b, तो हम उसके आंसर में लिखते थे डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर भी जहां पे x का स्क्वायर होता है ना, अब कुछ ना कुछ ऐसा आएगा x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 3 का स्क्वायर, x माइनस 5 का स्क्वायर, लेकिन x का कोफिशिएंट अभी भी 1 है, इसलिए डिवाइड में करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो हम कंप्लीट स्क्वायर तो ऐसे करेंगे, नंबर 1 बात। नंबर 2, मैं एक बात और नोट करवा दूं कि जैसे मेरे पास मान लो रिजल्ट 1 ही है एंड दैट रिजल्ट इज 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, बट सम टाइम इट मे बी यहाँ पे x का स्क्वायर होने के बजाय कुछ ऐसा आ जाए कि x की बजाय यहाँ पे कुछ ऐसा ax प्लस b का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा आ जाता है, x की बजाय एक्सटेंशन आ जाए ax प्लस b, तो देन कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट जहां पे तुमने x लिखा है वहां पे ax प्लस b लिखा जाएगा, कैपिटल ax प्लस b, और टोटल के डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x, so therefore this result become 1 upon 2a, this a into log of x minus a, sorry plus a, sorry minus a, x minus a, so that is ax plus b minus a, और डिवाइड बाय ax प्लस b प्लस a, और टोटल के डिवाइड में लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज a प्लस c, पूरे के डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x आ जाएगा। ये तो हमारे पास फर्स्ट जो हमने रिजल्ट किया था x की पावर n, फिर उसकी बजाय x की जगह हमने ax प्लस b लिखा था, तो वहीं से आता है बेटा। तो कभी भी कहीं पे भी अगर x की जगह कोई लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x आ जाए तो डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, और ये हमने तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो सी एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन क्या है बेटा, दो एक्सटेंशन है, दोनों सेम है एक्चुअल में एक्सटेंशन भी। लेट वी डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट है एक्सटेंशन 1 ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx, दिस इज रिलेटेड विद फर्स्ट 3 रिजल्ट, एंड सेकेंड है 1 ओवर ax square plus bx plus c into dx. This will be related with the next 3 result 4, 5 and 6 because it is under the root. Rest is same. हम बाकी सारा देखो न्यूमरेटर में 1 है, अभी हम इसमें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, तो इसको हम कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट्स वन क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर। So let's we are taking one example with ourselves, हम अपने आप ले लेते हैं। चलो 11th क्वेश्चन लेते हैं इस एक्सरसाइज का। 11th क्वेश्चन, तो दिस इज 1 ओवर 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू डी एक्सेट्रा, और इसमें तुम्हें बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपने दिमाग से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, उसका इंटीग्रेशन कर दें, कोई भी व्हाटएवर, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने दिमाग से।
तो पहला स्टेप था हमारे पास, हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है, तो इसलिए 9 को कॉमन लिया। सी केयरफुली सभी बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 6/9 एक्स प्लस 5/9 इंटू डी एक्स। सेकेंड स्टेप, इसको बेटा 6/9 कैंसिल होता है तो यहीं पे कर लेता हूँ। चलो एक बार, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म है उसके, स्मॉलेस्ट फॉर्म है उसके कर लेना चाहिए। दिस इज 2/3x और प्लस 5/9 इंटू डी एक्स। नाउ एड एंड सब्ट्रैक्ट, दूसरा रूल था एड एंड सब्ट्रैक्ट 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ऐसे लिख लेना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर दैट इज 1/2 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर। इट मीन्स दिस इज 1/3 का होल स्क्वायर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। बी केयरफुल, याद ऐसे ही रहेगा, हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो हाफ लिखा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2/3 है, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1/3 का स्क्वायर हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसे 1/9 ना लिखें, 1/3 ही रहने दें, 1/3 का स्क्वायर। तो देयरफॉर इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर हमने ऐड किया बेटा। एंड सी दिस पार्ट, दिस इज कंप्लीट स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो दिस वन इज x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, यहाँ बीच में प्लस का निशान है 2/3, तो इसलिए a प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता देन इट इज a माइनस b का होल स्क्वायर, और प्लस 5/9 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, वो हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ऐड भी कर दिया। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे हमने ऐड किया। तो नाउ इट इज 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और प्लस ये बेटा, ये दैट में भी, दिस क्वांटिटी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसको हम साइड में ऐड करके देख लेंगे। दिस इज 5/9 माइनस 1/9, 1/3 का स्क्वायर, दिस इज माइनस 1/9। तो बाय टेकिंग एलसीएम, by taking its LCM, this 9 is LCM, तो 5 minus 1 that is 4/9। तो बेटा this is plus 4/9 into dx। It may be नेगेटिव भी हो सकता था, doesn't matter। तो now चेक करो अब ये किसके साथ मैच कर रहा है, 1/a square plus x square। This is our third result। a का स्क्वायर करके लिख दे बेटे, तो बेशक 4/9 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 स्क्वायर प्लस x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो दिस इज 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सी और थर्ड रिजल्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड, जो हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं उसके थर्ड रिजल्ट में हमारा मैच कर जाता है। तो इंटीग्रेटेड, तो हाउ कैन इंटीग्रेटेड, दिस इज 1/9, बाहर कांस्टेंट दैट विल बी एज इट इज 1/a tan इनवर्स x/a। तो आगे फर्दर 1/a दैट इज 1/2/3 इंटू टेंजेंट इनवर्स x/a। तो x प्लस 1/3 डिवाइड बाई 2/3 और प्लस c डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x भी लिखते हैं हम, लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट हमने पहले ही +1 कर लिया, इसलिए ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। नाउ सिंप्लीफाई इट एंड दैट्स योर आंसर। सिंप्लीफाई इट एंड दिस इज योर आंसर। नाउ आई होप यू कैन डू इट। आप इन क्वेश्चंस को कोशिश करें ट्राई करने की, तो आपसे क्वेश्चन सारे के सारे निकल जाएंगे। सपोज यही क्वेश्चन बेटा अगर अंडर रूट में होता है, सपोज करो दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस 1/√9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, तो हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो जाता। देन व्हाट टू डू, फिर हम क्या कर सकते थे, इसमें से 9 को कॉमन लेते, ऐसे 9 जब अंडर रूट से बाहर कॉमन आता तो यहाँ पे 3 बचता, तो पहले तो यहाँ बाहर 1/9 की जगह 1/3 आएगा। ओके, दूसरा हमने अंदर अंडर रूट में बना तो वैसे बनाते चले जाना है, 3 आ गए बाहर हमारा, और ये सारे का सारा अंडर रूट में है, तो बेटा हमने फिर अंदर उसी तरह ऐड करना है हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड दिस 1/3 का होल स्क्वायर हमारा ऐड होगा, वो हम फिर से कर देंगे, सेम चीजें बिल्कुल, बस ये क्वांटिटी ऑफ अंडर रूट में आएगी, नथिंग एल्स, और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप देखिए इसको, ये किससे मैच करता है, दिस वन इज व्हाट, ये सारा अंडर रूट में आएगा तो फिर किसी न किसी से मैच करेगा और हम फिर ये क्वेश्चन को अप्लाई कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन में और आता हूँ, फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चन को। अंडर रूट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, तुम्हारी बुक से ले लेते हैं। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 14, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा एक और बात बतानी है मुझे, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है और दैट इज अंडर द रूट।
तो 8 + 3x - x² इंटू डी एक्स है बेटा। तो यहां पर x² का कोफिशिएंट -1 है +1 के बजाय, और -1 से मैंने बोला x² का कोफिशिएंट हम +1 करेंगे, लेकिन -1 को हम स्क्वायर रूट से बाहर कभी कॉमन नहीं ले सकते। जैसे आपके पास अगर ऐसा है तो वी कैन नॉट राइट इट लाइक दिस, ऐसे नहीं लिख सकते हम इसको। तो -1 नेगेटिव साइन को हम स्क्वायर रूट से बाहर कॉमन नहीं ले जा सकते, और हमें x² का कोफिशिएंट 1 भी करना है। तो व्हाट वी कैन डू हियर, हम ये बेटे माइनस कॉमन ले लें स्क्वायर रूट के अंदर ही। ध्यान दें, स्क्वायर रूट के अंदर ही मैंने माइनस को कॉमन लिया, तो इट बिकम x² - 3x - 8 लाइक दिस, ऐसे। देन फर्दर अब इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट अंदर ही कर दो, अंदर ही माइनस को पड़ा रहने दो। x² का कोफिशिएंट +1 हुआ, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x इज -3 और उसका होल स्क्वायर, तो दिस इज 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब आप स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव का कोई कंसेप्ट नहीं रहता। तो देन इंटीग्रेशन इज, देखिए अंडर रूट मैंने माइनस लिखा, ब्रैकेट लगाया, और इसके अंदर ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, x² - 3x + 3/2 का होल स्क्वायर। ये बनी बात बेटे, यहां से यहां तक ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, और -8 और -3/2 का स्क्वायर, ये हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ऐड भी कर दिया। चेक करो जरा ध्यान से, माइनस बाहर ही है स्क्वायर ब्रैकेट के, हमने 3/2 से ऐड किया और 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ ये माइनस का ध्यान रखना बस, ये अंडर रूट, यहाँ माइनस बाहर है, ब्रैकेट शुरू, तो दिस पार्ट इज व्हाट, दिस पार्ट, दिस इज x - 3/2 का होल स्क्वायर, बिकॉज इट इज माइनस हियर, तो a² + b² -2 will be, so that's why this is a - b का होल स्क्वायर, and this one is -8 - 3/2, इसको साइड में फिर ऐड कर लो, -8 - 3/2 मीन्स 9/4, दोनों नेगेटिव हैं, तो 4 एलसीएम, तो -8 तो 32 और -9, दिस इज -41/4, तो दिस इज नेगेटिव। मैं बता रहा हूँ इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, कई बार नेगेटिव आएगा तो कई बार पॉजिटिव आएगा, जैसा होगा वैसे लिख देंगे, इंटू dx, और ये ब्रैकेट बंद कर दें। नाउ लास्ट में ये माइनस अंदर ले जाओ बेटे वापस, जो हमने माइनस कॉमन लिया था, अब इस माइनस को अंदर लेके जा सकते हैं, तो देन दिस कांस्टेंट क्वांटिटी बिकम पॉजिटिव, तो 41/4 माइनस ये नेगेटिव हो जाएगा, x - 3/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। नाउ विच फॉर्मूला वी हैव टू मैच हियर, तो और 6 रिजल्ट मैच कर जाएगा, 1/√a² - x², तो a² को आप लिख सकते हो 1/√41 डिवाइड बाई √41 / 2 का होल स्क्वायर, और -x - 3/2 का होल स्क्वायर इंटू dx, होल स्क्वायर इंटू dx, तो a² - x², so it becomes sin inverse x, that is x - 3/2 upon a √41 divided by 2 plus c divided by coefficient of x, x का कोफिशिएंट 1 है, तो इट्स ओवर बेटा। ये सारा का सारा 7.4 एक्सरसाइज आप कर लेंगे, और फिर हम आगे लाइव क्लास लेंगे तो उसमें आपके डाउट डिस्कस करेंगे। ओके, गुड डे।